कभी ना देखना, इट्स सुपर फन। स्टैंड अप कॉमेडी से बेटर है ये बिजनेस न्यूज चैनल। ये कॉमन सेंस की उल्टी बात करते हैं। देखो यार, म्यूचुअल फंड ना बहुत सिंपल है। When you invest in a mutual fund, you confess and you accept कि I don't know how to pick stocks, so I am appointing an expert who, in theory, mutual funds are great. मेरी ग्रोथ को बाहर वाले जो बिजनेस को नहीं समझते हैं वो कैसे जज करते हैं? आजकल तेरे एम्प्लॉइज कितने हैं? So people judge the growth of business by head count. First level thinking में हमको दिखता है higher margin is a better business. लेकिन higher margin a lot of times is a terrible business. जितना high margin होगा उतना you are inviting competition to creep into that margin. जो जियो ने किया था जब एयरटेल वोडाफोन 250 रुपए जीबी का डेटा बेचते थे। Why do we need to worry? If a company has grown historically in the last 70 years and remained the market leader, तुम क्यों दरोगा बन रहे हो? Let them figure out, right? मेरे रग रग खून का कतरा hate government stocks. A couple of reasons. तो वॉरेन बफेट used to do a lot इस तरह के businesses. कोक में इन्वेस्ट कर दो, जिलेट में इन्वेस्ट कर दो और बढ़िया जिंदगी चल रही है। तो I like ऐसे businesses. If you put your money in anything that you don't intrinsically know, then that's gambling. So, in finance and investments, what's more important is that you always know what not to do and you'll outperform the market. And it's very, very easy. And I'll tell you why it's easy to outperform the market. ये कैसी जिंदगी है यार? पैदा हुए नहीं, रिटायर हो गए। मुझे ये बहुत डर से भरा हुआ थॉट लगता है। हम ग्रो कैसे करेंगे एज ह्यूमंस? We don't work, hustle. Hello everyone, good afternoon. So sorry to keep you waiting. It's a good challenge for me. I usually sound intelligent for an hour or two. I'll have to level up myself and sound intelligent for 3 hours and more. So I'm nervous, As a YouTuber, I sound pretty fancy for an hour and then, but I'll try my best. This is something, the topic is such that I can talk all my life on this. This is the only thing I know. This is the only thing I love. The only thing is, I'm on my journey to achieve financial freedom and I'm not financially free. So yeah, everything I say, take that with a pinch of salt, In fact, sometimes I say that I'm 32 and if I claim to be financially free at 32, then there's something wrong with me. In today's world, in influencers, noise, too much noise, a lot of people claim to be financially free at 25, 30. When I started creating content, 2018 onwards, 17, 18 onwards, FIRE was at 50, Then after COVID, FIRE was at 40. Now people claim that they can make people retire at late 20s and early 30s. That makes me question that if you want to retire in your 30s, then maybe what you are doing is wrong. You shouldn't be doing it. Because first things first, life expectancy by the time you get into your 70s, 80s will be around mid 80s. And if you're planning to retire in your 30s or 40s, next 40 years, what will you do? So if you feel like retiring in your 30s and 40s, then maybe what you're doing, what your work is, you need to change that. Your organization, your profile, your field and things like that. So I'll start with bad things first. What not to expect from me. I don't know any shortcuts. In finance, if someone sells you a shortcut, it's very, very dangerous. So at my college, I studied from National Institute of Securities Market. I did a 1-year diploma on securities market. And one of the first classes we were told there that, as finance professionals, if you don't know what to buy, which insurance or which mutual fund to buy, go ask your advisor and then buy anything except whatever he or she suggests. Because the incentives are not aligned, In most cases in finance, you are sold whatever product, whichever product that's currently offering the highest commission to them. So a lot of financial products are actually commission driven. So one is that, and second, anything new and fancy in the world of finance and investment, please stay away. Very, very dangerous. And I can give you examples. Most IPOs, terrible investments. Most NFOs, bad investments. Buy now, pay later cards, we all know what happened with them. Cryptos, Dream 11, things like anything new in finance, in terms of investment, please stay away. In finance, in general, whatever is boring often does really, really well.
If there are 5,000 companies already listed and one new IPO comes and everyone is excited, a lot of PR happens, news channels, influencers, and I know that why that happens, you know. They pay good. They pay really good. Karodon ka budget hota hai, you know, to talk about that one new company that's coming. And I always try to flip the question that if 5,000 companies already exist, जिसके fundamentals are well discovered, pricing is well discovered by the market, why do you want me to invest in the one new company that's coming? How can that be the best investment? Doesn't make sense. I think that happens with new product categories also. You know, let the category mature, let's see how that performs, let's see how it differentiates itself on the lower end from the mutual funds and on the higher end from PMS. So anything new in finance, very, very dangerous. In finance in general, as first principles, and I'll keep talking about first principles of wealth and finance. In finance, we keep talking about which stocks to buy, which mutual funds to buy, which insurance policy to buy, which FD to do. And I think that's a second level question. The first level of question in finance and investment is what not to do. Because if you are away from really bad things in finance, you will end up well. You know, a simple example to that could be in the last 45 years, Sensex has given a CAGR of, if I'm not wrong, between 13 to 14%. I'm bad with data, and you can still be in finance. Paradox, you know. But between 13 to 14%, the index has given in the last 40 years. And the entire race specifically in investing is to find the winners so that you can achieve 18-20% CAGR. Now think about it. If the index itself gives 14%, to me, a better strategy to outperform the market is, instead of trying to find 20 winners out of 5,000 companies, let's just focus on the index, say Nifty 50, and let's just eliminate the 20% worst stocks of the index. So out of the 50 stocks in Nifty 50, can I eliminate 10 stocks that are not inclined to do well? And I'll outperform the index by a couple of percent. As simple as that. So, you know, in finance and investments, what's more important is that you always know what not to do and you'll outperform the market. And it's very, very easy. And I'll tell you why it's easy to outperform the market. The data, multiple sources, some brokers, depositories, sometimes regulators, stock exchange. The data is that in a market that grows by a 14% CAGR, more than at least 90% investors make a negative return. So in a market that's growing by 14%, less than 10% people actually make more than 0%. Forget beating the market or matching the market. 14% CAGR, jahan natural growth honi chahiye, wahan most investors are at 0%. So outperforming the market in a market jahan itni gambling chal rahi hai, it's relatively easy. Because you are not trying to outperform 14%. You're just trying to outperform 0%. And you'll be amongst the top 10% in the market. How to create wealth? First things first, what not to do. Do not gamble. You know, if you don't gamble, market is giving you 14%. If you don't gamble, you will not lose out on things that you have already earned. So the simplest way to create wealth is to not gamble. And you know, not in the literal sense. When I talk about gambling, we picture a casino, but we gamble all the time. Gold is moving up. You know, let's delve into gold. You know nothing about gold. You know nothing why it moves, what is causing the rise, what is causing the fall, and you invest in gold. That's gambling. If you put your money in anything that you don't intrinsically know, then that's gambling. Gambling is not casino or playing cards. If you are investing your hard-earned money in something you don't know more than the market, then that's gambling. Because then you are at a disadvantage as compared to the average market. So if you invest in gold, it could be gambling. Silver could be gambling. If you're investing in mutual funds, all these are very, very safe personal financial instruments. Most Indians buy gold and mutual funds. But if you don't know why you are doing it and what amount to do, then even that is gambling. And you know, it's a paradox again.
we spend a Sunday evening buying precisely the right shoe. We'll go to 5 stores, we'll try different styles, fits, colors, comfort, before spending 5,000 rupees. We do that much of investment in terms of time. But we invest 50,000 on a tip. And I never understand this behavior. A 2,000 rupee t-shirt, we'll spend, we'll take a couple of family members or friends also along. I can't decide. But investment, ऐसे कर लेते हैं हम. And I don't understand this behavior. So this is gambling. So if you want to create wealth, what's more important is what not to do. Avoid these simple gambling behaviors that we don't even recognize is gambling. How do you build your first 1 crore? This is for people who don't already have 1 crore. I don't. I did not. Yeah. I intentionally kept this question and then I wanted to flip it. We often feel, ये amount, feel free to change it to whatever your goal is. आजकल मैं सुनता हूँ सोशल मीडिया में 50 करोड़ 100 करोड़ से नीचे में तो आपकी जिंदगी खत्म है. If you don't, somehow magically create a corpus of at least 50 crores, you are doing nothing in life. ठीक है, आजकल ऐसे ही होता है. 50 करोड़ इज द बेस लाइन. उसके बिना तो हम रिटायर हो ही नहीं सकते. ऐसा कुछ नहीं है. 2, 4, 5 करोड़ में भी बढ़िया जिंदगी चलती है. रायपुर आ जाओ. ठीक है. बट फील फ्री टू चेंज दैट 1 CR बिकॉज द टेम्पलेट मोस्टली रिमेन्स द सेम. कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है अमाउंट से. थोड़ी उम्र बढ़ जाती है. तुम 30 में नहीं कर पाओगे, 40 में कर लोगे. सो फील फ्री, वो अमाउंट वॉट एवर यू वॉन्ट. अभी पैसे कमाना इज वेरी वेरी सिंपल. देयर इज नो अपार्ट फ्रॉम 1 in a million लॉटरीज, देयर इज नो मैजिकल सीक्रेट रिवील्ड थंब रूल केसेस मास्टर क्लास ऑन क्रिएट वेल्थ. ऐसा कुछ नहीं है. यू एड वैल्यू टू द वर्ल्ड, यू गेट मनी इन रिटर्न. एज सिंपल इज दैट. In any way, if you're a good lawyer, good doctor, good CA, good engineer, good whatever, if you add value to your organization and indirectly to the world, you get money. It's as simple as that. Luck makes a factor, your college makes a factor, your family, nepotism makes a factor, but all of this can, change your ultimate destination by 5 years. आप 5 साल पहले या 5 साल बाद जहां पहुंचना है पहुंचोगे, unless, regardless of the factors, till the time you are adding good value to the world. It's as simple as that. So if you are adding good value to the world and if you continuously keep enhancing your skill set और आप एक particular field में एक narrow specialization लेते हो, बहुत narrow उसमें you pick, because what happens is, see, it's very 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 difficult, and I'm talking about whatever your field is, whatever you want to be. Let's design a framework on how to think about growing in career. This is important. अगर हम बहुत ब्रॉड सोचे देन इट्स ओवरवेलमिंग. से इफ आई डिसाइड आई वांट टू बी द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड, इट्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग. कैसे? बट इफ आई डिसाइड ओके आई वांट टू बी द बेस्ट कव्वाली सिंगर इन द वर्ल्ड और गजल singer in the world, I instantly eliminate 90% of all singers from my competition. It feels a little less overwhelming. Then I say, okay, Qawwali or Ghazal can be in 4 or 5 languages. I want to focus only on Hindi or only on Urdu. I again eliminate, 60-70% of the competition. Then I say, okay, no, I only want to focus on live events and independent music. Then all Bollywood singers who are doing that, I eliminate that from my competition. So if I keep refining, I'll end up realizing, यार 10 ही कॉम्पिटिटर है मेरे, 20 ही कॉम्पिटिटर है मेरे को उनसे बेटर होना है. So as you keep narrowing down your focus and you keep identifying what is that one thing that you can on an average do better than others, you will keep adding more value in that narrow domain. बहुत सिंपल है. 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, कीप डूइंग वन थिंग ग्रेट, यू विल एंड अप देयर. मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज इसको बर्बाद कैसे नहीं करना है. बिकॉज अगर हम मिस्टेक्स ना करें, अभी ऐसा फील नहीं होता है, बट वंस यू रीच अ मिड लेवल इन योर करियर को 15 साल हो जाएंगे, 25 साल हो जाएंगे, 35 साल हो जाएंगे, यू विल रियलाइज द वेल्थ दैट यू हैव क्रिएटेड, a substantial portion of it is because of the mistakes you did or did not commit. I'll tell you why. We'll go in that detail. ये बहुत चलता है सोशल मीडिया में. I hope most people give the good, right answer to it. Option A, option B.
ऑप्शन ए वाला कौन कौन है? हाँ, आई लाइक यू गाइज एक्चुअली, मैं भी वही चुनूंगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी होता तो मैं डालता नहीं यार, थोड़ा तो मजा लूंगा ना मैं। आई एम अ लॉयर, सो आई थिंक लाइक अ लॉयर, ठीक है। सो देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर पर से, इट्स अबाउट विच इज योर प्राइमरी मेंटल मॉडल। तो क्या होता है 6, एंड बिकॉज आई स्टडीड लॉ फॉर एन एक्स्ट्रा ईयर, आई एम एन एक्स्ट्रा लॉयर, मैं थोड़ा ज्यादा लॉयर जैसे सीखता हूँ, तो इट्स एन इंस्टिंक्टिव आंसर, नथिंग राइट और रॉन्ग। बट माई रीजन, जब मैं ऐसे 2 ब्लैंक सेंटेंस देखता हूँ तो मुझे ये आता है कि 30 दिन की क्या गारंटी, सामने वाला मर गया तो, सामने वाला बैंकक्रप्ट हो गया तो, मेरे को तो वो होता है ना, वो दिस इंग्लिश प्रॉवर्ब, सो माई मॉम इज अ डबल PhD इन इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स एंड इंग्लिश, which is why my English is terrible, because I always thought ये पढ़ के तो कुछ होना नहीं है, my mom will never be satisfied, so I'm not good at it. I always, वो जितना मुझे बोलती थी बेटा रीड शर्लॉक होम्स, रीड चार्ल्स डिकेंस, में उतना प्रेमचंद, नागराज और ये सब पढ़ता था, सो ऑपोजिट। सो या वो होता है ना कि आज जो हाथ में है इज वैल्यूड मच मोर देन जो हमको कल मिल सकता है, उसका इंग्लिश में कुछ है यार, नहीं, नॉट एग्जैक्टली दैट, क्योंकि 30 दिन में टाइम वैल्यू नहीं हो रहा है। इट्स व्हाट इज कि यू वैल्यू समथिंग दैट इज वेरी सर्टेन टुडे, you value something that's certain today, that you are getting today more than what you might get after 30 days, or that you will be getting over 30 days. आप किसी भी बिजनेस वाले से पूछोगे तो वो कुछ कैश डिस्काउंट देता है कि आज कैश पेमेंट हो रही है तो हाँ मैं डिस्काउंट दे दूंगा, पैसा आज चाहिए, बिकॉज जो हाथ में है उसकी वैल्यू जो अजम्पशन है या जो एक्सपेक्टेड है उससे बहुत ज्यादा है। तो मैथमेटिकली द आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऑप्शन बी होना चाहिए, लंबा चौड़ा चार्ट आ जाएगा। बट रियल लाइफ सिनारियो ये है कि ऑप्शन ए से मैं सारी अनसर्टेनिटी को खत्म कर दे रहा हूं, आई एम गेटिंग 1 CR आज एंड देयर इज नो अनसर्टेनिटी। ऑप्शन बी अमाउंट कुड बी मच हायर, बट बहुत सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस, सिचुएशनल कॉम्प्लिकेशंस, अनसर्टेनिटीज उसमें हैं। सो व्हाट इज द डिस्काउंट दैट यू आर विलिंग टू टेक टू गेट 1 CR आज? सो इस तरह के लाइफ सिनारियोज में आंसर्स आर ऑलवेज डिफरेंट, बट यू नीड टू नो कि व्हाट इज योर मेंटल मॉडल एंड हाउ डू यू ऑपरेट। किसी के पास है इसका जवाब इंस्टेंटली? अगर किसी के पास कुछ इंटरेस्टिंग जवाब है इसका तो वुड लव टू हियर। इसको चेंज कर देते हैं, इसको 1 करोड़ कर देते हैं। से इफ यू गेट 1 करोड़ टुडे व्हाट विल यू डू? ट्रैवल, ओके ओके ओके। एनीथिंग एल्स? प्रॉपर्टी, प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टी। 1 करोड़ में कौन से शहर में, कौन से शहर से है, मिलती है वहां 1 करोड़ में? और कौन सा? FMCG डिस्ट्रीब्यूशन? अरे बहुत, मेरे घर का बिजनेस है यार, बेकार है एकदम, मत करना। हाँ, और कुछ? एनीथिंग एल्स? किसी पे कर्जा वर्जा नहीं है क्या यहाँ? वेरी गुड यार, लोन वोन नहीं है किसी के हाथ, किसी के घर पे है ना? हाँ, और कुछ? यार अभी तो ना मेरे पास कोई यूज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को कोई शौक नहीं है यार जीवन में। इट्स वेरी बोरिंग लाइफ दैट आई लीड। nothing, so apart from playing badminton and cricket, that's something that I love doing. I have no material aspirations. So if you were at our place, what would you do? म्यूचुअल फंड्स, मे बी घर लोन पटा देता घर वालों के, तब तो थे जब मैं इस पोजीशन में था। सो माई फैमिली हैड डेट, होम लोन चल रहा था, प्रॉब्ली वुड हैव, इसलिए मेरे को वो ध्यान आया कि यहाँ लोन वोन नहीं है क्या किसी को, तो प्रॉबेबली इतना बड़ा तो नहीं था, 25-30 लाख था, थोड़ा वो पड़ जाता। बाकी सेफ्टी नेट, पेरेंट्स के लिए रिटायरमेंट प्लान, NPS, PPF, वेरी सेफ थिंग्स। बट इन जनरल दिस इज इंटरेस्टिंग, इन फैक्ट when I was earning nothing, and 25 साल की उम्र तक मैं कुछ नहीं कमा रहा था, I thought, the day I'll start earning 1 lakh rupees a month, life will change phenomenally, and it did change. From 0 to first 1 lakh rupees a month, life changes phenomenally. 1 lakh to 10 lakh, yes, you don't need to worry about almost any expense. 10x from there, nothing changes on an everyday basis, nothing. Because क्या खरीद लोगे आप ज्यादा सोना खरीद के गाड़ दोगे कहीं, हाँ, और म्यूचुअल फंड्स विल इंक्रीज, योर
your second house, third house, fourth house, second office, third office, farmhouse, land, all of that. But your everyday life will not change. एक ही घर में तो रहोगे, कहाँ जाओगे, है ना? और एक बार आप छोटे शहरों में एटलीस्ट आप रायपुर में 2-3 लाख रुपए महीना अगर कमाने लगो वर्सेस जो 2 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, उसकी एवरीडे लाइफ में चेंज नहीं आने वाला है. उसका बैंक बैलेंस ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, प्रॉपर्टीज ज्यादा है, मेंटेनेंस के खर्चे ज्यादा हैं, गाड़ी ज्यादा बड़ी है, बट नथिंग चेंजेस. सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्रीजेस वेरी क्विकली आफ्टर द फर्स्ट 2 lakhs. 2 lakh rupees a month and then is nose dives. ठीक है? So that's the good part. We don't need to be envious of people who are infinitely rich. क्या ही कर लेंगे वो? The problem with humans is we know that certain things are unpredictable, but we hate uncertainty. हमको हर चीज सर्टेन होना, हम कब मरेंगे, कब जिएंगे, कैसे जिएंगे, हमारा बच्चा क्या करेगा, हम 5 साल बाद क्या करेंगे, we want everything to be certain. It's the same with stock market. We know we cannot predict markets. And why we can't predict? A very logical explanation is everything that's happening in your city, in your country and in the world, politically, socially, economically, everything has an impact on the market, which is why it moves every second. Everything. Because think about it, every government decision, every global country's activity, everything has an economic consequence. Our everyday actions, our everyday life at a macro level, micro level has economic consequences. So if everything in the world has economic consequences, the market movement is made up of trillions of such combinations and trillions of such news flows. कोई न्यूज़ जिम्बाब्वे से आ रही है, कोई यूएस से आ रही है, कोई यूरोप से आ रही है, कोई इंडिया से आ रही है, सबके कॉम्बिनेशन से मार्केट्स आर मूविंग. सो इफ समथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ट्रिलियंस ऑफ फैक्टर्स पर सेकेंड, हम उसको चार्ट देख के कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? इट्स इनहेरेंटली अनप्रिडिक्टेबल, बट वी वॉन्ट इट टू बी प्रिडिक्टेबल. तो हम क्या करते हैं? वी लुक एट चार्ट्स. ठीक है? और हम चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग. ये कल इस प्राइस पे था, परसों यहां था, 50 डे मूविंग एवरेज ये था, इसका 200 डे मूविंग एवरेज ये था, कैंडल स्टिक पता नहीं क्या क्या करते हैं. तो अब इट्स प्रिडिक्टेड कि ये यहां जाएगा. और उसमें प्रिडिक्शन में भी कैसा होता है? उल्टा, कॉमन सेंस से उल्टा. ठीक है? कोई शेयर है XYZ, ये कभी ना CNBC देखना, इट्स सुपर फन. मतलब स्टैंड अप कॉमेडी से बेटर इज ये बिजनेस न्यूज चैनल्स. ये कॉमन सेंस की उल्टी बात करते हैं. ठीक है? ये बोलते हैं ये शेयर अभी 100 रुपए में है, इफ इट गोज टू 102 तो खरीद लेना, 96 में स्टॉप लॉस लगाना, अगर ये 96 आ जाए तो इसको बेच देना, ये अपने आप ही बिक जाएगा. स्टॉप लॉस लग गया तो गिरेगा तो बेचना, बढ़ेगा तो खरीदना. दुनिया में और कौन सी चीज हम ऐसे खरीदते हैं कि महंगी होगी तो खरीदूंगा, सस्ती होगी तो बेचूंगा? व्हाट लॉजिक इज दैट? नॉनसेंस, एब्सोल्युटली रिडिकुलस. भाई अगर तुमको कोई चीज पसंद है एंड इट्स गेटिंग चीपर तो बाय मोर, एंड you know, if it's getting expensive, sell. But market wants us to do the opposite. कोई गिर रहा है अभी ना, ट्रेंड डाउनवर्ड है, बेच दो. भाई वो सस्ता हो गया है, मैं सेल में जाता हूं बिग बाजार, खरीद के लाता हूं जब सस्ता होता है. सस्ता होने पे क्यों बेचूंगा? हाउ कैन एनीथिंग बी एब्सोल्युटली अगेंस्ट कॉमन सेंस? तो इस तरह की चीजें इस मार्केट में होती हैं. सो प्लीज स्टे अवे. म्यूचुअल फंड इतना सिंपल होता है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना. सेक्टोरल फंड से दूर रहना, थीमेटिक फंड से, बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप फंड से दूर रहना. देखो यार, म्यूचुअल फंड ना बहुत सिंपल है. व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, यू कन्फेस एंड यू एक्सेप्ट, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, कि आई डोंट नो हाउ टू पिक स्टॉक्स, सो आई एम अपॉइंटिंग एन एक्सपर्ट हु विल पिक स्टॉक्स ऑन माई बिहाफ, और वॉट एवर आई विल इन्वेस्ट आई विल पे 1% टू दैट एक्सपर्ट. बिकॉज इफ आई हायर द एक्सपर्ट पर्सनली, वो लाखों रुपए देगा, मेरा लाखों का तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स नॉट वर्थ इट. तो मेरे जैसे हजारों लाखों इन्वेस्टर पूल इन करते हैं, वो सब अपना 1% ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको देंगे ताकि वो अच्छा पैसा कमाए और हमको अच्छे स्टॉक्स दे, बिकॉज वो एक्सपर्ट है, मेरे को अपने काम से मतलब है. इन थ्योरी म्यूचुअल फंड्स आर ग्रेट बिकॉज ऑफ दिस बेसिक इंसेंटिव स्ट्रक्चर. उसमें हम म्यूचुअल फंड वाले के साथ क्या करते हैं, फंड मैनेजर के साथ? आई एम एक्सेप्टिंग कि यू आर द एक्सपर्ट, आई एम अ नोविस, सो यू इन्वेस्ट. पर मैं बोलता हूं कि मैं स्मॉल कैप फंड में डाल रहा हूं, तो व्हाट एम आई सजेस्टिंग टू द एक्सपर्ट? कि यू आर द एक्सपर्ट बट आई एम टेलिंग यू ओनली इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स. डिफीट्स द पर्पस ऑफ अ म्यूचुअल फंड. इफ ही और शी इज द एक्सपर्ट, let that person decide where the money should go.
अगर मैं उसको मैंडेट दे रहा हूं कि ये दिस इज एन आईटी फर्म, आईटी फंड, तो योर मैंडेट इज ओनली इन्वेस्ट इन आईटी स्टॉक्स, विच टेल्स मी कि यू एज एन इन्वेस्टर फील कि आईटी सेक्टर विल डू ग्रेट, सो यू वांट टू गो टू एन एक्सपर्ट एंड टेल आईटी में ही इन्वेस्ट कर, तो तू खुद ही कर ले, फिर तेरे को उससे ज्यादा पता है ना। इट्स लाइक गोइंग टू अ डॉक्टर एंड सेइंग मेरे को बुखार है, मलेरिया का ही बनाना, तो डॉक्टर बोलेगा फिर क्यों आया भाई, खा ले दवाई मलेरिया की, है ना। सो इफ यू आर आउटसोर्सिंग एन एक्टिविटी टू अ प्रोफेशनल, या तो उसको कर लेने दो या खुद कर लो। यू नो इंडस्ट्री लव्स इट, इंडस्ट्री को मजा आता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग फंड, और वो है इक्विटी फंड, ठीक है, तो भाई तूने स्टॉक्स में ही तो डालना है, नाम अलग क्यों दे दिया, टू गैदर मोर फंड्स, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो ये थीम्स में फंसना मत, जिस साल फार्मा ने अच्छा किया अगले साल फार्मा फंड लॉन्च कर देते हैं सब, और उसके आगे फार्मा फंड ही बुरा करेगा क्योंकि ऑलरेडी अच्छा कर चुका है, स्टॉक्स महंगे हो गए। तो जब ये फंड लॉन्च करते हैं तब सबसे खराब टाइम होता है, ठीक है। तो डोंट गो विथ स्मॉलर मैंडेट फंड्स, गो विथ ब्रॉडर मैंडेट्स फंड वेयर फंड मैनेजर एक्चुअली हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू पिवट एज पर मार्केट कंडीशंस। उसके हाथ बांध दोगे, स्मॉल कैप महंगा है, उसको पता है स्मॉल कैप नहीं लेना चाहिए, वो फंड ही स्मॉल कैप है, बाहर निकल ही नहीं सकता, इलीगल हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्ट इन ब्रॉडर फंड्स इन जनरल। तुमको डूपॉन्ट पता है यहाँ लोगों को, डूपॉन्ट क्या होता है, नहीं पता है, ठीक है, हाँ पता है, पता है, फॉर्मूला भूल जाने का, फॉर्मूला इज यूजलेस, ठीक है। तो डूपॉन्ट क्या बोलता है, इट्स फंडामेंटली ब्रिलियंट, थोड़ा सा मैं पिवट कर रहा हूं बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट। किसी भी कंपनी के रिटर्न्स 2-3 तरीकों से आ सकते हैं, हायर मार्जिन से पर यूनिट, हायर वॉल्यूम से, या लेवरेज से, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स से किसी भी कंपनी के रिटर्न आते हैं। टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, डीमार्ट, इंडिगो, वॉलमार्ट इज अ वॉल्यूम बिजनेस। मतलब अगर मैं डीमार्ट का सुनूंगा ना कि इनका नेट मार्जिन कितना है पर यूनिट, तो वो आएगा शायद 1%, 0.5%। दैट वे इट विल फील लाइक अ हॉरिबल बिजनेस, आधा % पे काम करता है, बैड बिजनेस, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लोअर मार्जिन इट सेल्स इन वॉल्यूम्स, उसका वॉल्यूम है ही इसलिए कि मार्जिन नेग्लिजिबल है, ठीक है। इसको और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, वी वैल्यू बिजनेस। जब भी ना, तुम लोगों ने कभी कुछ स्टार्टअप किया है या यू आर टू यंग, कभी किसी ने किया है, यू हैव डन इट, ओह वाओ, ओके, गुड टू नो। तो तुमसे ना लोग, मुझसे एटलीस्ट 7-8 साल पहले जब आई वाज स्टार्टिंग, मुझसे लोग कुछ सवाल पूछा करते थे, एंड ऑल रॉन्ग क्वेश्चंस। और आज तक मेरी ग्रोथ को बाहर वाले जो बिजनेस को नहीं समझते हैं वो कैसे जज करते हैं, आजकल तेरे एम्प्लॉइज कितने हैं, सो पीपल जज द ग्रोथ ऑफ बिजनेस बाय हेड काउंट, ठीक है। हमको वो फैक्ट्री वाली आदत पड़ी हुई है, 500 मजदूर है मतलब बड़ा प्लांट, 50 मजदूर है मतलब छोटी फैक्ट्री, ठीक है। दे डोंट रियलाइज कि व्हाट्सएप 7 बिलियन 17 बिलियन का हो गया था विद 12 पीपल, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, तो दैट इज वन फॉल्ट कि हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से ग्रोथ को जज करते हैं। दूसरा, पीपल जज बिजनेस बाय रेवेन्यू, कि तुम्हारा रेवेन्यू कितना है। अगेन अ वेरी कमोडिटी वे ऑफ वैल्यूइंग बिजनेस, कि होता क्या था, जब आप ट्रेडिंग करोगे, आप स्टील सीमेंट बनाओगे, तो योर रेवेन्यू इज द मेट्रिक, कि प्लांट की कैपेसिटी इतनी है, सोना लोहा बना रहे हो आप 100 रुपए किलो, जितने किलो बेचोगे, बिकॉज लोहा इज अ कमोडिटी, अगर 100 रुपए भाव है तो हर प्लांट को 100 ही रुपए में बेचना है, 99 में बेच लोगे या 101 में बेच लोगे। तो वहां वॉल्यूम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम मतलब इन अ वे टर्नओवर, तो लोग आपसे टर्नओवर पूछ लेंगे, 100 करोड़ 1000 करोड़, तो दे विल जज बाय टर्नओवर कितना है। इंडिया में ट्रेडिशनली बिजनेसेस ये 2 तरह से वैल्यू होते हैं, टर्नओवर उसका 500 करोड़ का टर्नओवर है, और प्रॉफिट तो छोड़ो, साल का 100 करोड़ लॉस करती है, कर्जे में है, बैंक्रप्सी कोड में केस चल रहा है, उससे मतलब नहीं है, टर्नओवर कितना है, ठीक है। और एम्प्लॉई कितने हैं, 1000, पूरा गांव का गांव उसके यहाँ काम करता है, अपने साथ पूरे गांव को लेके डूबेगा वो, ठीक है। सो रॉन्ग मेट्रिक्स ऑफ वैल्यूइंग अ बिजनेस। इसको अब मैं ब्रेक डाउन करके माइक्रो तरीके से बताता हूं। 2 लोगों ने सोचा हम पेंसिल बेचने का बिजनेस शुरू करते हैं, दोनों के पास 100 रुपए थे, 10-10 रुपए की दोनों ने 10 पेंसिल खरीदी। एक ने सोचा मैं यार हाई मार्जिन बिजनेस करूंगा, मैं 5 रुपए प्रॉफिट लूंगा, उसने दिन की 10 पेंसिल बेच दी, 100 रुपए में खरीदी थी, 150 रुपए में बेच दी, ठीक है। उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हुआ, 50%। रिटर्न ऑन कैपिटल कितना हुआ, 50%। 100 रुपए कैपिटल है, 50 रुपए रिटर्न आ गया, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी तो उतना ही हुआ ना, कर्जा नहीं था, सही बोल रहा हूं मैं कुछ,
हाँ, तो 50% उसका रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ, ठीक है। 100 रुपए दिन में लाया था, दिन के अंत में 150 रुपए घर लेके जा रहा है। जो दूसरा था, क्योंकि वो 10 रुपए की पेंसिल, उसने सोचा मैं लो मार्जिन में बेचूंगा, मैं 12 रुपए में बेचूंगा, ठीक है। उसका माल 10 पेंसिल 1 घंटे में बिक गया, उसके पास 120 रुपए आए, उसने 12 पेंसिल खरीदी, फिर से 1 घंटे में बिक गया। ऐसे कर करके उसने दिन की 50 पेंसिल बेच ली, ठीक है। हर पेंसिल में उसने 2 रुपए कमाए, दिन के अंत में उसके पास 200 रुपए आ गए। उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 100% हो गया, ठीक है। लेकिन नेट मार्जिन एक का 20% था, एक का 50% था। ऑप्टिक्स और फर्स्ट लेवल थिंकिंग में हमको दिखता है हायर मार्जिन इज अ बेटर बिजनेस, ठीक है। लेकिन हायर मार्जिन अ लॉट ऑफ टाइम्स इज अ टेरिबल बिजनेस, क्योंकि जितना हाई मार्जिन होगा उतना यू आर इनवाइटिंग कॉम्पिटिशन टू क्रीप इनटू दैट मार्जिन, जो जियो ने किया था जब एयरटेल वोडाफोन 250 रुपए जीबी का डेटा बेचते थे। हायर मार्जिन अट्रैक्ट्स कॉम्पिटिशन हमेशा, लॉट ऑफ केसेस, unless it's very strongly protected by a moat, by a competitive advantage. एप्पल के केस में वो अपना हायर मार्जिन प्रोटेक्ट कर पाता है बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स जो कंपटीशन आके इरोड नहीं कर सकता। बट इन मोस्ट केसेस हायर मार्जिन इज एन इन्विटेशन कि भाई आओ। देर इज अ रीजन कि HUL का लक्स आज भी 10 रुपए का मिलता है और हम जब से 25 सालों से देख रहे हैं 10 ही रुपए का मिलता है, साइज थोड़ा कम हो गया होगा। दैट मार्जिन अलाउज कि कोई आ ही ना पाए, ठीक है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ HUL। जैसे द फर्स्ट हाइपोथेसिस अबाउट कोलगेट इज हाउ विल द ग्रोथ कम। एवरीवन यूजेस अ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट ऑलरेडी, सो वेयर विल द ग्रोथ कम? ग्रोथ नहीं आएगी, द स्टॉक विल नॉट ग्रो। एंड द सिंपल आंसर टू दैट इज कि वॉल्यूम ग्रोथ वोंट कम बट मार्जिन ग्रोथ विल कम। एंड व्हाई विल इट कम? इट्स वेरी सिंपल hypothesis. 20 years ago, 15 years ago, every household had one paste tube, red, blue, yellow, red, blue, white वाली कोलगेट, सिंपल कोलगेट। हर घर में एक बड़ी 200 ml की ट्यूब होती थी, हर किसी को उसमें से नाप नाप के लगाना होता था पेस्ट। नाउ एवरी पर्सन हैज देयर ओन टूथपेस्ट, किसी को सेंसिटिविटी, किसी को जेल, किसी को व्हाइटनिंग, थिंग्स लाइक दैट। एंड ऑल दोज प्रोडक्ट्स आर प्राइस्ड 3 times to 4 times more than the normal Colgate. So the margin growth will come. Next, 15 years ago, no one talked about mouthwash. Mouthwash यूज नहीं होता था। They created a new category and now mouthwash हर कोई यूज कर रहा है। There is a reason इंडिया में फ्लॉस की बात नहीं होती है, अभी जरूरत नहीं है, अभी ग्रोथ माउथवॉश से आ रही है। 10 साल बाद एकदम से माउथवॉश, फ्लॉस विल बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरल केयर थिंग व्हेन दे विल फील कि ओके अब ग्रोथ के लिए ना तीसरी चीज भी लानी पड़ेगी। उसके बाद ये तीसरी बार भी ब्रश करवाएंगे, है ना, अभी 2 बार करवाते हैं। दे विल फिगर आउट, वी डोंट नीड टू वरी। इन्होंने 70 साल में दे हैव फिगर्ड आउट हाउ टू कीप ग्रोइंग टूथपेस्ट। दे विल फिगर आउट। व्हाई डू वी नीड टू वरी? इफ अ कंपनी हैज ग्रोन हिस्टोरिकली इन द लास्ट 70 years एंड रिमेन द मार्केट लीडर, तुम क्यों दरोगा बन रहे हो? Let them figure out, right? They have proven with a long enough history that they can figure it out. What do you think of the government stocks? Hate them, absolutely. मेरे रग रग खून का कतरा, I hate government stocks. A couple of reasons. One, so in my BA LLB, I come from a political science background. एंड उसमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यहाँ किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है? नहीं, ओके। सो देयर इज दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हाउ स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, वेयर इन द थ्योरी बेसिकली सेज कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ अ स्टेट में ये है कि सिटीजन्स केम टुगेदर टू अपॉइंट लीडर्स एंड अथॉरिटीज हु विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट, कि बाहर से आक्रमण ना हो, अंदर के लोग प्रॉब्लम ना करें और हर कोई अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव कर सके। सो यू सरेंडर सम ऑफ योर फ्रीडम एंड राइट्स इन एक्सचेंज ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट्स, विच इज व्हाई नेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस। वेरी वैलिड थ्योरी, राइट? मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही हुआ होगा। जब भी सरकार कोई बिजनेस करती है, इट वायलेट्स दिस थ्योरी। I surrendered some of my freedom and agreed to comply with your 40,000 acts and laws so that you give me the opportunity to do commerce and business. I did not surrender those rights so that I have to compete against taxpayers' money. मैं तुमसे कैसे compete करूं? You are funded by taxpayers. So a country's job is to
provide safety and freedom to its citizens, not to compete against its citizens. So ये fundamental flaw है यार. इनसे ना मैं फिर इसके बाद efficiency की भी बात करूं. Whenever at least the Indian government has done a business, in most cases it has done it miserably. BSNL, सरकारी बैंक, एयर इंडिया, इनसे कुछ नहीं संभलता और संभल सकता भी नहीं. हाउ डू यू compete against driven, professional, passionate entrepreneurs who are trying to maximize value for shareholders? वहां तो आप BSNL में भी IAS को बिठा रहे हो, उसका हर 3 साल में ट्रांसफर कर रहे हो. वो कैसे एयरटेल से compete करेगा? तो आई थिंक इट्स अ ड्रैग ऑन शेयर होल्डर्स. आप बैठ के सरकारी बैंकों में नीरव मोदी को लोन दे रहे हो, फिर आप बैंकरप्ट हो रहे हो, तो टैक्स पेयर के पैसे से उनको बैंकरप्सी से बचा रहे हो. ऑल्सो इवन वर्स, देयर वाज दिस डेटा कुछ साल पहले का कि 1/4 ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट इज ऑक्यूपाइड बाय प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनकी ब्रांचेस और उनके ATMs. दैट डज 2 थिंग्स. अगर 25% शॉप्स एंड ऑफिसेज आर ऑक्यूपाइड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स, that creates artificial scarcity of commercial real estate and drives the prices and rent for me. मुझे दुकान नहीं मिलेगी क्योंकि आपको हर जगह ATM खोलना है. Also, there's an argument against this about last mile service delivery कि अगर public sector banks नहीं होंगे तो how will banking access will come to remote areas? If I believe in that argument, then you don't need 12 public sector banks. Then you need maybe 2 or 3 public sector banks. But what I see in urban areas, कैनरा बैंक का ऑफिस रोड के इस तरफ, SBI का उस तरफ, PNB का उसके बाजू में. That is not serving your public service delivery goal. आप और तीनों लॉस मेकिंग फॉर मोस्ट ऑफ देयर हिस्ट्री. तो टैक्स पेयर के मनी से ये तीनों आपस में कंपीट कर रहे हैं और एडवर्टाइज करके होर्डिंग भी खरीद लिया, ATM भी खरीद लिया, ऑफिस भी खरीद लिया, एंड आई एम फंडिंग इट. और फिर लोन नीरव मोदी को दिया. रिडिकुलस. सो या आई हेट ऑल दीज. बहुत इनएफिशिएंसी, बहुत करप्शन, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स. आई थिंक वन बिग सर्विस दैट वी इंडियंस कैन डू टू द कंट्री इज नॉट डिपॉजिट मनी इन दीज बैंक. इनके पास होगा नहीं ना तो ये देंगे नहीं इधर उधर, वरना कहीं भी बांटते. इनको क्या है? एंड इट्स अगेन अबाउट इंसेंटिव्स. ह्यूमंस रिस्पॉन्ड टू देयर इंसेंटिव्स. HDFC को पता है इफ इट गोज बैंकरप्ट, इट गोज बैंकरप्ट, और इफ इट्स रेस्क्यूड द कॉस्ट विल बी ह्यूज. प्रमोटर्स अंदर जाएंगे, डायरेक्टर अंदर जाएगा, करियर खराब होगा, सब होगा. पब्लिक सेक्टर बैंक्स नो इफ दे गो बैंकरप्ट, टैक्स पेयर मनी विल कम. कोई आएगा बचाने, क्योंकि हम अकेले थोड़ी डूबेंगे, हम तो देश को लेकर डूबेंगे, तो देश आएगा बचाने. तो इंसेंटिव्स आर नॉट अलाइंड टू द सिटीजन. मैं एग्जैक्ट भूल गया हूं, बट आई वंस रेड अबाउट अ फर्टिलाइजर फैक्ट्री इन UP that ran for 3 decades, and roughly they had 80 people on their roll, 80 employees for 30 years. Fertilizer factory never produced 1 kg of fertilizer for some or the other reason. Imagine. This is an extreme example, but this will never happen in a private company. 80 employees, 30 years, fertilizer बनाने का काम है, 1 किलो भी नहीं बना. और तुम कौन सा कुछ बहुत टेक्निकली एडवांस चीज बना रहे थे? यूरिया बनाना था, नहीं बना. So it's a drag on the society. Yeah. But good question. Why did you ask this? You invest in, and recently they have done well. Recently public sector stocks have done well. But if we zoom out, they have done really bad, very bad. Yeah. Sir, on the surface level, it looks good to invest directly in the stocks, but in the recent time we see that like in the IDFC First Bank there is a fraud, and in the IndusInd Bank. क्यों किया IDFC में? यही तो मैं समझा रहा हूँ. There is one reason why people invest in IDFC and IndusInd, because they want the thrill of investing in IDFC. There is no reason why a sane investor will not invest in Axis, Kotak, HDFC, ICICI and invest in IDFC. तो IDFC में नुकसान हुआ ना तो डिजर्विंग है, जिसको भी हुआ. There is a reason why someone invested in IDFC. Yes, you just spoke about comparison and putting the money in the stocks for the products we use daily. If I talk about Zomato and Swiggy, I think the market share is 50-50.
Which among the two do you think will perform better then? How do you analyze that? So broadly, I don't invest in VC backed कंपनीज. तो अगर मैं उनकी फंडिंग स्ट्रक्चर में जाऊं तो बोथ आर अनइन्वेस्टेबल फॉर मी बिकॉज, और इसमें होता क्या है, बिकॉज द इंसेंटिव्स आर अगेन नॉट अलाइंड. मोस्ट VCs हैव अ होराइजन ऑफ, डिपेंडिंग ऑन, एंजल फंड्स का कम होता है, सीड का अलग होता है, बट most maximum have a horizon of 5 to 7 to 8 years. So what they want to do is they want to prepone and squeeze all the 20 years growth into 5 years, drain the company, juice out all the profits and exit. A lot of VCs work that way, which is why I wouldn't look at both. There are exceptions, but अगर मैं इसको हटा दूं, philosophy wise on how these products function, and it's just philosophy. Zomato is the leader, Swiggy trails, but I like Swiggy more. It's a very simple reason. It's not a very sound reason, but as I told, I am a minimalist. अब होता क्या है? There are two distinct approach that ये दोनों platforms ने लिए हैं. Eternal जो है, it's focused on giving you separate experiences with each of their app. तो आप Zomato से Blinkit नहीं कर सकते, Blinkit से Zomato नहीं कर सकते. It has its advantages कि उस ऐप के अंदर for that particular experience the exposure is better. Whereas on Swiggy ऐप आप Instamart भी उसी में कर सकते हो, आप स्टेशनरी भी उसी में कर सकते हो, पहले जीनी भी उसमें कर सकते थे, डाइन आउट भी उसी में कर सकते हो, एंड स्विगी भी उसी में कर सकते हो. आई जस्ट फील कि द यूज केसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. कि मेरे को फूड ऑर्डर करते करते याद आया कि यार मुझे ना डोसा तो खाना है, लेकिन उसके साथ में मुझे कल के लिए ब्रेड भी मंगानी है. आई फाइंड दीज टू केसेस टू बी अलाइंड. जोमैटो की फिलॉसफी है कि ये अलाइंड नहीं है, ये कंप्लीटली सेपरेट यूज केसेस हैं. मुझे ऐसा नहीं लगता. आई ऑर्डर लेस फ्रीक्वेंटली, बट आई फाइंड कि नहीं यार, ये दोनों अलाइंड है. मैं जब डिनर का सोच रहा हूं तो मैं नाश्ते का भी सोच रहा हूं अगर मैं अकेले रह रहा हूं तो, और मैं चाहता हूं कि अभी मैं फ्री हूं, दोनों डिलीवरी अभी हो जाए. तो फॉर दिस सिंपल रीजन आई एम लाइकिंग स्विगी मोर. इट क्रिएट्स अ क्लटर इन द ऐप, बट आई लाइक दिस अप्रोच मोर. आई थिंक, और कभी कभी देयर इज ऑल्सो दिस कंफ्यूजन कि मंगाऊं कि जाऊं खाने. I think sometimes this also happens, specifically on weekends. तो स्विगी पे ही डाइन आउट होना makes more sense. Yeah. So this approach wise I like Swiggy more, but no hardcore financial reason. I don't know much about them. Yeah. लेकिन अपन जब इतना स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं ना, तो another important thing is, should you even consider investing in stocks, and what's the advantage, or should you completely forget it and focus on mutual funds? See, if returns is your perspective, you want to invest mutual funds या stocks में, you want to decide कि आपको पैसे से पैसा बनाना है, forget about stocks, stick to mutual funds. You will either do as good as experts or you will do worse than them. So if that is the purpose, पैसे से पैसा बनाना, and you don't enjoy the process, forget about it, invest in mutual funds. There is one use case of investing in stocks, which is why I build products around investing in stocks, and which is why I invest in stocks, and which is why I hope people invest in stocks. जब skin in the game होता है directly, when you are accountable for your financial performance, is when you read more. तब हम deep learning करते हैं, तब हम अलग अलग industries के, तो क्या होता है, when you have invested in stocks, आप naturally, because you have skin in the game, you are invested. Someday you will read about a hospital industry, someday you will read about hospitality, someday FMCG, someday IT, कभी कुछ जो ordinarily हमको कभी पढ़ने में आएगा नहीं. We might read fiction, we might read, entrepreneurship, marketing, लेकिन we'll never read about hospitality, we'll never read about hospitals, never read about FMCG, pharma, deep. So I think as a stock investor, when you spend a decade or two डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, आपके रिटर्न्स चाहे म्यूचुअल फंड जैसे हो या उससे इंफीरियर हो, बट दिस रीडिंग कंपाउंड्स, दिस मल्टी डिसिप्लिनरी रीडिंग कंपाउंड्स, एंड ओवर द लॉन्ग रन यू बिकम अ मच स्मार्टर ह्यूमन बीइंग. सो अगर मैं नॉलेज अल्फा भी कैलकुलेट करूं तो प्रोबेबली इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इज ग्रेट, बट दैट नॉलेज अल्फा ऑल्सो कम्स विद अ डाउन साइड कि आपका टाइम भी बहुत लग रहा है. तो इट्स एन इंडिविजुअल कॉल. आई विल नेवर जज एनीवन कि ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता तो खराब है, या म्यूचुअल फंड में करता है तो बेहतर है. इट्स एन इंडिविजुअल कॉल. आप वो टाइम देना चाहते हो कि नहीं, या यू आर वेरी सेटिस्फाइड विथ योर करियर, आप जो कर रहे हो, यू डोंट वांट टू केयर अबाउट अदर इंडस्ट्रीज. नहीं होना आपको और इंटेलिजेंट, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो और आप अपना डोमेन ही पढ़ना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप वो टाइम फैमिली को देना चाहते हो. आई विल अंडरस्टैंड दैट एज वेल. सो दोनों का पर्पस बहुत क्लियर है.
पैसा दोनों में बराबर बनेगा, शायद म्यूचुअल फंड में ज़्यादा ही बन जाएगा। पर आई बिलीव बहुत सारी रीडिंग, मेरी लाइफ की 70-80% रीडिंग जो मैंने की, आई वुडंट हैव डन दैट इफ माई मनी वॉज नॉट ऑन द लाइन। सो व्हेन मनी इज ऑन द लाइन इज व्हेन वी रीड, खास करके आज when there is so much distraction that we hardly do deep reading. It's not possible, we are not used to deep reading. Stock investing creates that incentive that you actually do deep reading. That is an advantage. I think it's a big advantage, but it's up to individuals. Sir, isn't the ETF is a good option? Yeah, it's very good. ETFs are very good. ETF low, index fund low, similar. Buying the individual stock, maybe it is still risky, but if you No, but the thing is, ETFs are nothing but a fancy name for mutual funds, right? The mode of transaction is different, but ETFs are mutual funds. It's nothing else. So it's the same thing. If you want to do investing in a completely passive way, please do mutual funds. It will grow. It will do better than directly investing in stocks. But stocks का knowledge alpha आपको नहीं मिलेगा. Otherwise, ETFs are same. It's mutual fund. स्टॉक्स में आपने बोला कि एनुअल रिपोर्ट से आप रिलाइज कर सकते हैं कि स्टॉक कैसा करेगा, अच्छा करेगा, तो व्हाट हाउ टू टेक अ स्टॉक जो भी डेट हो गया, एनुअल टर्नओवर हो गया, उसके अलावा और क्या देखना है? ठीक है, नहीं तो सबसे पहले सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, इट हैज टू बी फ्रॉम एन इंडस्ट्री दैट यू अंडरस्टैंड एंड अ कंपनी दैट यू अंडरस्टैंड। जैसे आज भी एट फिनोलॉजी वी बीन डूइंग वेल्थ मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी टू क्लाइंट्स फॉर लास्ट 7 years, बट आज भी आर इन्वेस्टेबल बास्केट शायद 300 स्टॉक्स का होगा। सो वी एक्सेप्ट दैट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट 4,700 stocks and we don't care about them. We know about 300-350 stocks, out of which we'll give you 30 stocks. And I think that's good enough. So it's about first understanding your limitations, what you can do, what you can't do. So our investable universe, for example, is FMCG, consumer discretionary, white goods, travel, anything related to financial, non-banking financial products. So insurance, depositories, brokers, इस तरह की apps. So because we are in touch with them every day. तो अगर कोई market intermediary है जो banking नहीं है, non-banking market intermediary within our circle of competence, automobile circle of competence, personal consumption, white goods, consumer durables, we stick to this. Entertainment, travel, leisure. और इसमें से एक मैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हटा दूं तो शायद बाकी कैटेगरीज जो मेंशन की मैंने वो हर आम इंसान उस कैटेगरी को जानता है जो बाकी सारी मैंने मेंशन की। सिर्फ एक कैटेगरी ऐसी है दैट बीइंग इन दिस प्रोफेशन गिव्स मी एक्सेस एंड नॉलेज। सो वी स्टिक टू इट। 300-350 कंपनियां हैं एंड वी डोंट केयर अबाउट हम क्या मिस कर रहे हैं, फोमो नहीं होने का। और रियल लाइफ में हमको नहीं होता, ये ना स्टॉक मार्केट का प्रॉब्लम है। सो जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट फुटबॉल। तो मेसी कितना पैसा कमा रहा है उससे मेरे को जलन नहीं होगी, क्यों होगी, मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट में उल्टा होता है, इसने एफ&ओ से पैसा कमाया, अच्छा इसने फॉरेक्स से, इसने बिटकॉइन से, इसने इंट्राडे करके, इसने कमोडिटी स्टॉक से, इसने पीएसबी से, इसने बैंकिंग से, इसने फार्मा से, मुझे भी करना है। स्टॉक मार्केट में वी वांट टू डू एवरीथिंग, वी डोंट रियलाइज कि हमको स्पेशलाइज वहां भी करना है। और मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आई गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट वेल्थ, क्योंकि मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में मुझे ऑलरेडी मार्केट के अगेंस्ट एडवांटेज है। इफ समवन हैज वर्कड एट इन्फोसिस फॉर 5 years and I have 10-year experience of analyzing IT annual reports, that person is ahead of me, है ना, in a lot of ways. तो उसको IT में करना चाहिए। लेकिन IT वाले कभी IT में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, डॉक्टर कभी फार्मा में इन्वेस्ट, डॉक्टर IT लेके बैठा रहता है, बिल्कुल कुछ नहीं पता। बिकॉज इसका एक रीजन एक और है, हम जिस इंडस्ट्री में रहते हैं वी नो एवरीथिंग दैट्स बैड इन दैट इंडस्ट्री, तो वी आर फेड अप ऑफ दैट इंडस्ट्री। और मैं दिन भर काम भी डॉक्टर वाला करूं फिर खरीदूं भी फार्मा, इट फील्स लाइक वर्क। सो आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन फार्मा, आई वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग एल्स। ऑल्सो बिकॉज आई एम सो फार अवे फ्रॉम दैट इंडस्ट्री दैट आई नो नथिंग नेगेटिव अबाउट दैट इंडस्ट्री एंड देन आई फील दैट इंडस्ट्री इज ग्रेट। सारी दुनिया की प्रॉब्लम मेरी इंडस्ट्री में ही है, उसमें शायद ज्यादा है, आपको पता नहीं है ना। तो 80% of the problem is solved if you stick to your circle of competence, then you avoid debt, then you avoid loss-making companies जिसमें profit हो ही नहीं रहा है, then you filter out high ROE companies that have decent sales growth, profit growth. Good enough. हो गया। हाँ 10-15 साल तो होने चाहिए,
ताकि एक स्टेबल. ऑल्सो आई वुड लुक एट अनदर थिंग कि वेदर, जैसे आई लाइक फ्लिपिंग द क्वेश्चन. जैसे वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन वाइल स्टॉक पिकिंग इज फ्यूचर किस चीज़ का है, यू नो, व्हाट्स द फ्यूचर, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर. Now predicting the future is very very dangerous and unpredictable. So I like to flip the question. I like to say what's not going to change. अगले 10 साल आज क्या ह्यूमन बिहेवियर है जो 10 साल बाद भी होगा, जैसे ब्रश करना, जूते पहनना, कपड़े पहनना, वो चीज़ें जो नहीं बदलेंगी या मोस्ट प्रोबेबली नहीं बदलेंगी. लेट्स इन्वेस्ट इन दैट. लेट्स नॉट ट्राई टू प्रिडिक्ट थिंग्स. करो ही मत प्रिडिक्शन. प्रिडिक्शन मिनिमाइज करते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी लाते हैं. ठीक है. ऑल्सो क्या होता है व्हेन यू आर बेटिंग ऑन प्रिडिक्शंस, तो योर चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग आर ऑन 2 लेवल्स. पहला कि इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जाएगी. जैसे आज से 5 साल पहले तक देयर वाज दिस डिबेट इन द इंडस्ट्री. ऑल द जापानीज कार मेकर्स बिलीव दैट फ्यूचर इज हाइब्रिड एंड यूरोपियन कार मेकर्स बिलीव फ्यूचर इज ईवी. अभी ऐसा लग रहा है कि यूरोप टर्न्ड आउट टू बी राइट, लेकिन जापानीज हैव नॉट गिवन अप अभी भी. इसलिए यू विल सी द ओनली हाइब्रिड्स इन इंडिया आर टोयोटा, होंडा, सुजुकी. जापानीज डीपली बिलीव ईवी. तो आज से 5 साल पहले जब कोई ये बेट ले रहा होता तो उसको 2 बेट्स लेनी थी कि मैं कौन से डायरेक्शन पे जाऊं, मैं हाइब्रिड पे बेट करूं या ईवी पे, और फिर उसमें विनर कौन होगा, है ना. वेयर एज इफ आई बिलीव कि यार 10 साल बाद भी ना पेट्रोल कार चलती रहेंगी, तो मुझे कुछ प्रिडिक्ट करना ही नहीं, मेरे को मारुति लेना है, दैट्स इट. बोथ लेवल्स ऑफ प्रिडिक्शंस गॉन. ऑल्सो देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. Usually in a stable industry, mostly in a stable industry, it's almost impossible to dislodge the market leader until the industry itself changes. So the reason 70 सालों से इंडिया में Colgate is number 1 is not because Colgate is a great company, but because टूथपेस्ट में कुछ बदला ही नहीं. तो वो क्या टाइम पास करते रहते हैं, आज नमक डाल देते हैं, कल नीम डाल देते हैं, परसों बबूल डाल देते हैं, टाइम पास, है ना. कूलिंग क्रिस्टल डाल रहे हैं, ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा. सॉर्बिटॉल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, वो सबसे शक्कर तक नहीं डालता अपने कोलगेट अपने पेस्ट में. शक्कर भी उसको महंगा लगता है, सैक्रिन डालता है सबसे महंगे पेस्ट में भी. तो आप कोई भी पेस्ट खरीद लो, 20 रुपए वाला, 200 रुपए वाला, सैक्रिन डालता है, पान मसाले वाला स्वीटनर. ठीक है, चीपेस्ट, कुछ करना ही नहीं है. और नमक डाल दो, टाइम पास, बबूल, कोई नीम डाल रहा है, कुछ भी टाइम पास करते रहो, कुछ बदला ही नहीं है. ठीक है. ऐसे ही पेट्रोल, मारुति क्या करता रहता है, बलेनो का फ्रॉन्क्स ले आओ, ठीक है, एल्टो का एस्प्रेसो ले आओ, टाइम पास, कुछ नहीं करना है. सेम. तो जब तक कोई इंडस्ट्री में फंडामेंटल चेंज नहीं आ रहा है, मोस्टली द लीडर विल रिमेन द लीडर. तो लुक एट इंडस्ट्रीज जिसमें चेंज नहीं आ रहा, उसका लीडर उठा लो, शांति की जिंदगी. सिंपल. तो जैसे बहुत सारे, जैसे ये हॉकिंस बनाए जा रहे हैं कुकर, ठीक है, कोई कुछ करना ही नहीं है. और इधर चैट जीपीटी, जेमिनी, हर दिन हम पीछे हो गए, और इंजीनियर ले आओ, और पैकेज बढ़ा दो, साइनिंग बोनस में टेस्ला दे दो, पागल हुए जा रहे हैं, और ये कुकर बेचे जा रहे हैं. सो गुड. तो वॉरेन बफेट यूज्ड टू डू अ लॉट इस तरह के बिजनेसेस. कोक में इन्वेस्ट कर दो, जिलेट में इन्वेस्ट कर दो, वो कैंडी, चकली, मीठा च्युइंगम, रिगलीज, ये सब में इन्वेस्ट कर दो, और बढ़िया जिंदगी चल रही है. तो आई लाइक ऐसे बिजनेसेस, कुछ बदलना ना पड़े, फालतू की चीज़ें बेचते रहो. खाने में अभी जो नया स्टार्टअप्स आ रहे हैं या नए बिजनेसेस आ रहे हैं जिनका IPOs आ रहा है या स्टॉक्स आ रहा है, एग्जाम्पल देना. जोमेटो फॉर एग्जाम्पल. अच्छा, ठीक है, एग्रीगेटर, ठीक है. अब वो VCs लेके आ रहे हैं, हाँ. तो हम उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं, मतलब प्रेफर नहीं. मैं नहीं करता, बट मैं इसको रूल नहीं बोलूँगा. आई डोंट लाइक डूइंग इट. अगेन आई डोंट लाइक डूइंग इट बिकॉज लॉस मेकिंग होते हैं, बहुत रैपिड चेंज हो रहा होता है, अनलिमिटेड कैपिटल बर्न होता है. सो आई डोंट लाइक. Sir, how much percentage of our income we should invest? How much we should save? देख 20% 25% तो इन्वेस्ट करना चाहिए अगर कर सको तो. बट अगर कर सको, सबकी सिचुएशन क्या होती है, कभी लोन पटाना है, कभी कुछ पटाना है, तो अगर इफ देयर इज अ चॉइस बिटवीन प्री पेइंग अ लोन वर्सेस इन्वेस्टिंग, आई विल प्रेफर प्री पेइंग अ लोन. सरदर्दी पहले खत्म करने का, फिर वंस यू हैव इनफ डिस्पोजेबल इनकम, तो हाँ, सैलरी का अगर 20-25% इन्वेस्ट कर सको तो ठीक है. बाकी आई एम नॉट समवन जो बोले बस एक एक पैसा बचा लो, घर वालों को भूखा प्यासा रख लो, ठीक है. तो थोड़ा वॉट एवर योर पैशन इज, घूमने का शौक हो, लाइफ में एक बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है.
तो आई थिंक द गुड वे टू गो अबाउट इज कि साल का लाख कमाते हो तो पहले 20,000 इन्वेस्ट कर दो, फिर 80,000 में क्या होता है 30, 40, 50,000 के तो खर्चे वो होते हैं जो मंथली के राशन के बिजली के बिल हैं वो तो देना ही देना है। बाकी 25-30,000 जो बचे उसमें से फॉलो वॉट एवर यू इंजॉय एंड योर फैमिली इंजॉय। तो नेसेसिटीज, एसेंशियल्स एंड इन्वेस्टमेंट, नेसेसिटी, वांट्स एंड इन्वेस्टमेंट तीनों ज़रूरी हैं, तीनों का एक बैलेंस ज़रूरी है। 20 साल पूरा एकदम बस बचा ही लिया, दैट ऑल्सो नॉट ट्रू। और कुछ खर्चे कंपलसरी होते हैं। वांट्स वाला पार्टी कंफ्यूजिंग होता है कि कितना वांट में डालूं और कितना इन्वेस्ट करूं, तो दोनों में इवन स्प्लिट। अगर आपकी 1 लाख कमाई है, 50,000 ऐसे खर्चे जो बचा ही नहीं सकते तो भूल जाओ, 50,000 तो जाने ही है। बाकी 50,000 पूरे घूमने फिरने में खर्च करूं या पूरे इन्वेस्ट करूं, मैं बैलेंस आधा आधा दोनों चीज़ें। गुड बैलेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म वांट्स एंड लॉन्ग टर्म नेसेसिटीज़ के हिसाब से अगर कर सको तो अच्छा है। बट बैलेंस रखना, घर वालों को परेशान मत करना, बोले किसके साथ आ गए हम, हर जगह बस पैसा बचाता है, ठीक है, तो योर टुडे विल बी मिजरेबल। कीप अ बैलेंस। So do you think all of these startups that are coming in should not come up with an IPO rather than get acquired by companies which are already listed in the stock market? So this is already happening in fact. Marico, all of these are doing and Marico. taking over the smaller startups. मेरिको तो इज ऑन अ, हाँ कि क्या है जो मैं खरीदूं। Yes, exactly. HUL ने मिनिमलिस्ट लिया था, मेरिको ने सब कुछ ले लिया है, ITC ने योगा बार ले लिया है, अभी वो राइट बाइट को जाइडस ने ले लिया है, तो ये इंडिपेंडेंट बचेंगे नहीं। सो होता क्या है, ये जो स्टार्टअप्स है ना, ये जब तक तो इनको मार्केट से फंड मिलता रहे, प्राइवेट मार्केट से, ये उठाते रहते हैं। उसके बाद प्राइवेट मार्केट वाले बोलते हैं बस हो गया, अब तुम हमको एग्जिट दो। तो इनके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो ये IPO लाके लोगों को चूना लगाएं, विच इज़ वर्स, या HUL, मेरिको जैसी कंपनीज होती हैं जिनके पास ना अनलिमिटेड फ्री कैश फ्लो है। कोलगेट का मुझे एनुअल रेवेन्यू और प्रॉफिट बताना, एंड दिस इज जस्ट कोलगेट, सेल्स एंड प्रॉफिट ईयरली। 1,400 crore is the profit and 6,000 is your सेल्स। ये होता है बिजनेस। 6,000 करोड़ का मंजन और ब्रश बेच लो, ठीक है 1,500 करोड़ उसमें से बचा लो। अब होता क्या है, ये 1,500 करोड़ ईयर आफ्टर ईयर दे आर सेविंग। इसका करेंगे क्या, कुछ करने को तो है नहीं, नया प्रोडक्ट तो लाना नहीं है, नमक डाल देना है, ठीक है, तो कुछ करने को नहीं है इनके पास। CEO सो रहा है ऑफिस में 10 साल से, ठीक है, एंड वो CEO, तो एक बार चार्ली मंगर सेड दिस कि द बेस्ट CEO ऑफ कोको कोला इज द वन हु कम्स टू द ऑफिस एंड स्लीप्स। शक्कर, पानी, सोडा लाल कैन में बेचना है, उसको बदलोगे तो प्रॉब्लम होगा। एंड सी हाउ गुड अ बिजनेस दैट इज। थोड़ा सा फ्लेवर डालो, शक्कर डालो, सोडा डालो, कैन में डाल दो, और 120 साल से रोज करोड़ों कैन्स बेचो, जीरो इनोवेशन। द बेस्ट पार्ट अबाउट कोक इज 100 साल से टेस्ट नहीं बदला, एक बार उन्होंने 80s में टेस्ट बदल दिया था, तो सेल्स वेंट डाउनहिल। तो द बेस्ट CEO इज हु डज नथिंग, कुछ करने का नहीं है। ऑफिस में पता नहीं बंक बेड्स ही होंगे, जाके सोते होंगे। तो थिंक अबाउट इट, ये जो स्टार्टअप्स आते हैं बहुत, ये अपेरेंटली बहुत स्ट्रगल करके और इनोवेशन करके, एंड हियर इज अ कंपनी जो 1,500 करोड़ का साल का फ्री कैश फ्लो है, उसके पास कोई काम नहीं है, वो सोती है 10 साल, फिर देखती है अच्छा ये अच्छा कर रहा है, खरीद लो, खरीद लिया, खत्म कहानी। किसी ने जो स्टार्टअप बनाया है, दे मस्ट हैव अ विजन बिहाइंड इट। उसमें क्या होता तो है, वो चला जाता है। उसमें क्या होता है, ठीक है, गुड क्वेश्चन। अगर VC से पैसा लिया है तो मोस्ट प्रोबेबली तो विजन था पैसा कमाना, मोस्ट प्रोबेबली। कई कैटेगरीज में ना पैसा लेना कंपलसरी हो जाता है, तो आई डोंट ब्लेम देम। जैसे Uber और Swiggy आर कैटेगरीज जहां इवन इफ यू आर पैशनेट यू हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ VC फंडिंग, बिकॉज आपको ब्लिट स्केल करने के लिए सप्लाई और डिमांड को एट द सेम टाइम इंसेंटिवाइज करना है। तो आई अंडरस्टैंड ऐसी कंपनियां जो प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रही हैं टेकिंग फंडिंग, इट कैन नॉट बी डन विदाउट फंडिंग, क्योंकि ऑन डे 1 when you are asking riders to install Uber app, there has to be thousands of drivers available, and on day 1 when you are asking drivers to enroll, there has to be lakhs of riders available. तो एक ही दिन मेरे को दोनों चाहिए, VC फंडिंग चाहिए। लेकिन ये जो प्रोटीन बार बना रहे हैं, शैम्पू बना रहे हैं, इसमें क्यों VC फंडिंग चाहिए, आई डोंट नो। ये धीरे धीरे स्केल हो सकता है। तो यहां मुझे पैशन कम और कैपिटलिज्म ज्यादा दिखता है।
सम बिजनेसेस आई अंडरस्टैंड वीसी बैकिंग के बिना नहीं हो सकता है. सो देर इज दिस. दूसरा, इवन इफ मैं बोलूं कि किसी ने बहुत पैशन से बिजनेस बनाया एंड उसने वीसी फंडिंग ली, लेकिन था प्राइमरी फैक्टर पैशन. अब होता क्या है, दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट HUL. HUL तब तक मिनिमलिस्ट की कैटेगरी में नहीं आ रहा है जब तक HUL ये इंश्योर नहीं कर लेता कि ये कैटेगरी में पैसा है, ये स्केल हो सकता है. मैं अपने खर्चे पे स्केल क्यों करूं, देखता हूं कौन स्केल कर पाता है. अच्छा, मिनिमलिस्ट स्केल हो गया. अब सिंपल सा ऑफर है मिनिमलिस्ट को, एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस. मैं बहुत ही क्रूड वे में बोल रहा हूं, बट दिस इज व्हाट हैपेंस. किसी दिन बुला लिया मिनिमलिस्ट वाले को अपने को ऑफिस में और बोलो बेचेगा कि बंद करवा दूं. इट्स एज सिंपल एज दैट. और बंद कैसे करवा दूं कि तुम जब तक अपनी वेबसाइट से बेच रहे हो ठीक है, बेचते रहो, इंस्टाग्राम से बेचते रहो, लेकिन जितना इंस्टाग्राम से बेच सकते थे, वेबसाइट से बेच सकते थे, वहां तक तो तुम स्केल कर ही लिए हो गया. अब यहां से ग्रोथ के लिए तुमको डीमार्ट पे आना है, यहां से ग्रोथ के लिए किराना दुकान में आना है. शहर की हर पान दुकान, हर मेडिकल स्टोर, हर किराना दुकान तक पहुंचना है. ये तो तुमको करना पड़ेगा यहां से स्केल करने के लिए. एंड HUL विल से यार मेरा ना, अच्छा तेरा जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई साबुन है, आई डोंट नो इफ मिनिमलिस्ट मेक्स अ सोप बट अज्यूम इट्स मेकिंग अ सोप, एंड HUL सेज ठीक है, आप अपना सोप उसी किराना दुकान में रखना चाहते हो जहां मेरा डव, पियर्स, लक्स, लाइफ बॉय, मार्गो और पता नहीं क्या क्या साबुन और हैं. एंड यू वांट कि आपका एक मिनिमलिस्ट 1% सम एसिड सोप भी रहे. वो पूरे शहर में अपने सेल्स, एंड दिस इज अजम्पशन कि इस तरह का होता होगा, वो अपने सेल्स एरिया हेड को, सिटी हेड को बोलेगा HUL कि अच्छा वो पूरे मोहल्ले में 100 दुकानें हैं और वो दुकानदार को चाहिए से फॉर एग्जाम्पल किसान केचप और क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम. गर्मी आ रही है, आइसक्रीम चाहिए. उन सबको बोल दो जब तक तुम 1000 पीस लाइफ बॉय और लक्स ऑर्डर नहीं करोगे तुमको आइसक्रीम नहीं मिलेगी. सिंपल एज दैट. आई एम नॉट सेइंग दे डू इट, आई एम एप्रीहेंसिव दे माइट. अब दुकानदार को गर्मी में क्वालिटी वॉल्स तो चाहिए, किसान केचप और किसान का स्क्वॉश चाहिए, व्हाटएवर, मल्टीपल नॉर के सूप चाहिए, व्हाटएवर. और उन पे कंडीशन ये आ गई, ये तभी अवेलेबल है जब तुम 100 पीस पियर्स लोगे. अब अगर दुकानदार 100 पीस पियर्स लेगा तो बेचेगा भी तो पियर्स, नहीं तो वो डेड स्टॉक क्यों रखेगा. और जब वो 100 पीस पियर्स में अपना पैसा फंसा देगा तो वो 1% मिनिमलिस्ट वाले सोप के लिए उसके पास पैसा नहीं बचेगा और वो उस पर फोकस नहीं करेगा. फिर मिनिमलिस्ट आएगा और आधे दाम पे HUL को बेचेगा और HUL बोलेगा प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 50%. हाँ पूछ. So, a lot of these like influencers also say कि एक नंबर है कि 8 to 10 करोड़ अगर आपने बना लिया तो आप फिर साथ अपना जॉब छोड़ के you can just retire and live your life. पागल हो जाओगे, 6 महीने तो बहुत मजा आएगा, फिर पागल हो जाओगे. करना तो है but कुछ is है. that like a realistic number? That was one question कि in India if 10-20 years later if that will still be like a relevant number to live like a decent lifestyle, because अभी सब जगह पे वही बात हो रही है, मतलब all these 1% club and जो भी चीज़ें आती रहती हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि 8 to 10 CR is something that you can target if you want to live like a minimal lifestyle, and that's a good enough number to achieve. And the second question related to this was कि making 1 CR in itself is such a painfully slow process, right? So is there some other way to accelerate that to achieve that number उसी faster? में गड़बड़ होता है यार, ये तो सोचना ही नहीं. अपना काम करो शांति से, कोई भी शॉर्टकट नहीं है यार, गड़बड़ होता है. अब देखिए है क्या, देख 10 करोड़ का लॉजिक ये है सिंपल कि आपको 6% FD का मिलेगा अगर आप FD में भी रखोगे. महीने का 5 लाख हो जाता है. महीने का 5 लाख आ रहा है तो आपकी ज़िंदगी कट जाएगी. वो 5 लाख में से आप 2-3 लाख यूज़ करो, बाकी और डालते रहो ताकि आपका कॉर्पस भी बढ़ता रहे. ज़िंदगी कट जाएगी. लेकिन ये कैसी ज़िंदगी है यार, पैदा हुए नहीं, रिटायर हो गए, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाया, मर गए. ये कैसी ज़िंदगी है. अगर इंसान का जन्म मिला है और हम इतना धरती को पॉल्यूट कर रहे हैं, everything that a human does pollutes the planet, kills trees, plants, मतलब animals and what not. तो जब हम इतना पाप कर रहे हैं तो कुछ अच्छा भी कर लेते हैं दुनिया के लिए. तो आई थिंक जस्ट फिलोसफिकली इट्स अ टेरिबल वे. आई कैन अंडरस्टैंड कोई 50-55 के बाद ये करना चाहता है कि यार 30 साल मैंने मेहनत की, मेरा कार्बन फुटप्रिंट जो इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्लास्टिक मैंने जनरेट किया, उसके बदले दुनिया को कुछ दिया भी.
50-55 के बाद आई कैन अंडरस्टैंड कि किसी को ये ज़िंदगी जीनी है, उसके पहले कुछ तो पॉजिटिव करो यार, है ना. मतलब गॉड शुडंट रिग्रेट गिविंग बर्थ टू अस. तो दैट्स अ टेरिबल. ये तो अब देखिए यार, होता क्या है, कोई 1% या स्पेसिफिक नहीं, आपको रोज़ कंटेंट बनाना है ना, रोज़ आंखों के सामने आना है. तो क्या बोलोगे, यही सब बोलोगे. आज 8 करोड़, कल 10 करोड़, अभी इसमें डाल लो, परसों उसमें डाल लो. डालना किस में है? 2 इंश्योरेंस में डालना है, NPS में डालना है, 2 म्यूचुअल फंड में डालना है, हो गया. तो ये तो एक दिन का भी कंटेंट नहीं हुआ. जब तक उल्टा सीधा बोलेंगे नहीं, कंटेंट आएगा कैसे, है ना. नहीं, बिकॉज बहुत लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. अभी तो सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं. 30-40 की उम्र में रिटायर करना है, 8 to 10 करोड़ का कॉर्पस बन गया. तो यार 40-35 में रिटायर हो गए तो भगवान माफ़ तो नहीं करेंगे. मतलब कि अच्छा खासा तुमको मैंने शरीर दिया है ना, अच्छे भले हाथ पांव चल रहे हैं तुम्हारे, जमाखोरी करोगे बस तो भगवान माफ़ नहीं करेंगे. मत करना. 60 साल तक तो काम करें, या जब तक किसी का प्रॉब्लम है, कुछ डिजीज़ है, डिसेबिलिटी है, समझ में आता है. अदरवाइज आई एम ऑफ द ओपिनियन कि जब तक शरीर चल रहा है कुछ करना चाहिए. सॉरी, बहुत चल रहा है. कुछ साल पहले क्रिप्टो चलता था, 2 साल 3 साल पहले. आजकल ये सब चलता है, 10 करोड़ रिटायरमेंट, 25 करोड़, 50 करोड़ रिटायरमेंट. ये सब एक तो ना यार, ये प्रिडिक्ट नहीं होता. मतलब यू नेवर नो क्या खर्चे आ जाएं अगले. आप 10 करोड़ लेके रिटायर होके आज बैठ गए कि महीने का 2 लाख आ रहा है, पता चला बेटा किसी को ठोक दिया, आप कोर्ट ने लगा दिया 2 करोड़ का फाइन, हो गया रिटायरमेंट प्लान खत्म. हाँ, यू नेवर नो. घर जल गया आपका, ठीक है, गया घर, अब 2.5 करोड़ घुस गए. और यू नेवर नो. लाइफ इतनी बड़ी है ना कि यू ऑलवेज टिल द टाइम योर बॉडी अलाउज, यू वॉन्ट टू कीप थिंग्स इन योर कंट्रोल. यू वॉन्ट टू बी capable of generating income, not just enjoying income. जंग लग जाता है जल्दी यार, नहीं तो ठीक है. लाइफ इज वेरी लॉन्ग, फिल्ड विद अनसर्टेनिटीज. तो दिस इज अ वेरी, सॉरी टू से, बट मेरे को ये बहुत, जब भी मैं सुनता हूँ मुझे ये बहुत डर से भरा हुआ थॉट लगता है कि बस मेरे पास 10 करोड़ आ जाए और मैं शांति से, मुझे कुछ ना करना पड़े. क्यों भाई, तू करना है यार. हम ग्रो कैसे करेंगे एज ह्यूमंस इफ वी डोंट वर्क, हसल, and whatever doesn't grow rots. So what is your take on fundamental research analysis, as in like, do retail investors like, is it required, or like from your company perspective also, like do you do this in depth and then suggest it to the investors? Definitely. I mean, जो अपन ने थोड़ा थोड़ा ऊपर से डिस्कस किया, इट्स अ बिगिनिंग. आई थिंक starting point for us is different. We don't start with the financial statements. We start with the quality of the business and what it does, and then if we like the idea, then we go into financial statements. So we don't avoid, rather than using Excel as a tool to generate ideas, we use Excel to check our hypothesis, to validate our ideas कि जो हम सोच रहे हैं वो numbers में दिख रहा है कि नहीं. तो to me, financials are a verification source, not a generation of idea source. So just the way we use and the chronology is different, but definitely it's important. Thank you. Thank you.